کو بتانا چاہتا ہوں کہ اس سے ان اکاؤنٹس میں انٹرسٹ جو ہے وہ اور بھی بڑھے گا۔ سب سے پہلی چیز یہ ایف بی آر سے ریلیٹڈ ٹیکسیشن کے جو مسائل ہوتے ہیں، آپ کی رہنمائی کی وجہ سے پرائم منسٹر صاحب، آپ کی انٹرسٹ کی وجہ سے یہ آرڈیننسز پاس ہوئیں کہ اب جو بھی بیرون ملک پاکستانی روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹس کے ذریعے یا نیا پاکستان سرٹیفکیٹ یا سٹاک مارکیٹ یا ریئل اسٹیٹ میں انویسٹ کرتا ہے، اس پہ جو اس کو منافع آتا ہے، اس منافع کی حد تک اس پہ جو ٹیکس کٹتا ہے سورس پہ، وہ فل اینڈ فائنل ہے۔ اس کے بعد اس منافع کے لیے اس کو ایف بی آر میں کوئی ریٹرن فائل کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ سیٹسفیکشن بیرون ملک پاکستانیوں کے لیے ہے کہ ان کی ٹیکس کی ادائیگی ہو گئی جو انہوں نے منافع کمایا۔ اس کے ساتھ ایک اور اعلان میں یہ کرنا چاہتا ہوں پرائم منسٹر صاحب کہ ایک جو دقت آتی ہے بیرون ملک پاکستانیوں کو، وہ یہ آتی ہے کہ جب ہم اپنے اکاؤنٹس میں پیسے بھیجتے ہیں تو ہمیں بینک چارجز بہت لگاتا ہے۔ مجھے لوگوں نے بتایا ہے کہ ہمارے $50 کٹ گئے، ہمارے $70 کٹ کے پیسے بھیجتے ہوئے۔ تو مجھے بڑی خوشی ہے کہ ہم نے بینکس کے ساتھ مل کے یہ آج میں اعلان کر رہا ہوں کہ ایک ایسا راستہ نکالا ہے کہ بیشتر کورسپونڈنٹ بینکس جو ہیں جو کہ روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹس میں پیسے بھیجیں گے، اس پہ چارجز صرف $5 سے $9 تک ہوں گے۔ آپ جتنا اماؤنٹ بھیجیں $5 سے $9 تک، ایک بہت کمی آئی ہے، اور میں شکر گزار ہوں ان بینکس کا جنہوں نے ہمارے ساتھ اس میں تعاون کیا ہے۔ اور پرائم منسٹر صاحب، ایک اور جو خوشخبری میں بیرون ملک پاکستانیوں کو دینا چاہتا ہوں، خاص کر جو یورپ اور برطانیہ میں ہیں، ان سے ہمیں یہ ریکویسٹ آتی تھی کہ ہمیں نیا پاکستان سرٹیفکیٹ جو ہے اس کو یورو اور برٹش پاؤنڈ میں بھی میسر کریں، یہ صرف ڈالر میں تھا۔ تو منسٹری آف فائنانس کے تعاون سے آج یہ بھی میں اعلان کرنا چاہتا ہوں کہ برٹش پاؤنڈ ڈینومینیٹڈ اور یورو ڈینومینیٹڈ سیونگ سرٹیفکیٹ، نیا پاکستان سرٹیفکیٹس اب میسر۔ تو میرا آخری پیغام وزیر اعظم صاحب اب ہمارے بینکوں کے لیے ہے، جن کے ساتھ ہی ہم نے یہ روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹ کی اسکیم شروع کی۔ سب سے پہلے تو میں ان کا شکر گزار ہوں، ان 8 کا، اور اب ایک ہمارے پاس ایک نئے بینک بھی آ گئے، ان قریب 15 بینکس اس میں آ جائیں گے۔ میں شکر گزار ہوں کہ انہوں نے ہمارے ساتھ یہ سفر شروع کیا، لیکن ساتھ ساتھ میرا پیغام ان کے لیے ایک یہ ہے کہ جیسا کہ میں نے کہا کہ ہمارے اوورسیز پاکستانیز کی تعداد 7 سے 9 ملین ہے، ابھی 88,000 اکاؤنٹ کھلے ہیں۔ آپ کے سامنے ایک پوٹینشل ہے، آپ اس میں آگے چلیں، ان اوورسیز پاکستانیز کو اوور بورڈ کریں، اور ان کے لیے جو روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹس ہیں اس میں سہولیات لائیں آگے کہ ان کے لیے آسانی ہو، اتنی ہی آسانی ہو جو ان کو اپنے باہر کے بینکوں میں میسر ہے۔ آخر میں وزیر اعظم صاحب، میں بات وہیں پہ ختم کروں گا جہاں سے شروع ہوئی تھی، اور وہ آپ کی ویژن سے، آپ کی یہ جو انسٹرکشنز تھیں حکومت کے لیے اور اسٹیٹ بینک کے لیے کہ عام آدمی کے لیے آسانیاں پیدا کی جائیں۔ روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹ اس کی ایک مثال ہے۔ اس کے علاوہ جو اسٹیٹ بینک آپ کی ہاؤسنگ کی مارک اپ سبسڈی اسکیم اور لو کاسٹ ہاؤسنگ اسکیم کو آگے بڑھا رہا ہے، وہ اس کی ایک اور مثال ہے۔ اور آج میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اسٹیٹ بینک میں پرائم منسٹر صاحب ہم اسی کام پہ لگے رہیں گے کہ پاکستان میں عام آدمی کے لیے بینکاری کرنا اور بینک سے بینکنگ کرنا وہ آسان ہو۔ مجھے اس میں پوری امید ہے پرائم منسٹر صاحب کہ ہم اپنی محنت سے آپ کی امیدوں پر، ہماری قوم کی امیدوں پر اور ہمارے بیرون ملک پاکستانیوں کی امیدوں پر پورا اتریں گے۔ شکریہ۔ بہت شکریہ رضا باقر صاحب۔ جیسا کہ آپ نے کہا کہ یہ تو صرف ٹپ آف دا آئس برگ ہے، ابھی تو سفر شروع ہوا ہے، ابھی تو کہاں سے کہاں جانا ہے انشاءاللہ۔ تو شاہین ہے پرواز ہے کام تیرا، تو شاہین ہے پرواز ہے کام تیرا، تیرے سامنے آسماں اور بھی ہیں۔ یہاں جہانگیر خان صاحب بھی تشریف رکھتے ہیں، لیجنڈ ہیں اور امبیسڈر بھی ہیں، برانڈ امبیسڈر بھی ہیں ایک بینک کے ساتھ اس کیمپین پر۔ رمیز راجہ صاحب بھی تشریف رکھتے ہیں، اور رمیز راجہ صاحب نے ہمارے ایک ٹی وی سی کا وائس اوور کیا ہے، اور کمال کا وائس اوور کیا ہے۔ جو بیرون ملک پاکستانی ہے وہ ویسے ہی ان سے کنیکٹ کرتے ہیں کرکٹ کامنٹری کے تھرو، تو انہوں نے بھی، ان کی آواز نے بڑا کردار ادا کیا ہے۔
लोगों ने जो तेजी से नया पाकिस्तान सर्टिफिकेट्स चली हैं. अब आगे बढ़ते हैं. हमारे साथ हैं कुछ ओवरसीज पाकिस्तानीज अकाउंट होल्डर्स जो अब करेंगे बराह रास्त वजीर आजम पाकिस्तान इमरान खान साहब से गुफ्तगू. पहले मैं दावत दूंगा सैयदा पेकर जहरा साहिबा, आप मस्कत ओमान से हमारे साथ हैं इस वक्त बराह रास्त. In Muscat for a bank. मैं believe करती हूँ is one of the best initiatives state bank and any government has ever launched for overseas Pakistan. I think state bank still इसके scope को further improve कर सकता है. इसमें advisory services और wealth management services include करके for Pakistani diaspora, especially for real estate sector. Plus net rate of return after tax जो है अभी गल्फ कंट्रीज के रेट ऑफ रिटर्न के कंपैरिजन में अभी भी इतना अट्रैक्टिव नहीं है, स्पेशली यूएस डॉलर में. तो आई थिंक उसे थोड़ा फर्दर इम्प्रूव करने की जरूरत है. बट लेवल ऑफ इंटीग्रेशन इज पार एक्सीलेंस, स्पेशली सीडीसी एंड ब्रोकरेज सर्विसेज, एंड आई विश ऑल द बेस्ट फॉर स्टेट बैंक फॉर दिस इनिशिएटिव. जी बहुत बहुत शुक्रिया सैयदा पेकर ज़हरा. वकार यूनुस साहब भी यहाँ तशरीफ रखते हैं, एक और क्रिकेटर. वकार यूनुस साहब खुश आमदीद. हमारे साथ हैं हामिद हुसैन शिकागो से. जी हामिद साहब. जी अस्सलाम वालेकुम. सबसे पहले तो मैं शुक्रिया अदा करूंगा प्राइम मिनिस्टर साहब का. मैं तकरीबन 30 साल से बाहर हूं और इन 30 सालों में मैंने जो सबसे बेहतरीन इनिशिएटिव देखा है जो डायरेक्टली बेनिफिट करता है ओवरसीज पाकिस्तानीज को, वो ये इनिशिएटिव है. और ये जिस तरह से एग्जीक्यूट हुआ है वो उसके लिए भी मैं स्टेट बैंक और बैंकर्स जितने भी यहाँ मौजूद है सबको कंग्रेचुलेशन कर देता हूँ कि बहुत ही इजी तरीके से ये सब जो है हमने जो है अकाउंट खोलना वगैरह बहुत इजी था. इसमें एक क्विकली सजेशन है जो इन पर्टिकुलर जो अमेरिका में पाकिस्तानी से उनकी वजह से है, उनके लिए है कि जो जिस तरह से इंफॉर्मेशन कलेक्ट की जाती है अकाउंट को खोलने के लिए उसके प्रोसेस को थोड़ा सा ट्रांसपेरेंट करें और उसमें प्राइवेसी का ख्याल रखा जाए ताकि बैंकों को जो है ना ये इंस्ट्रक्शन दी जाए कि जो इंफॉर्मेशन दी जाती है उसको प्राइवेट रखा जाए. क्योंकि वजह यह है कि यहाँ पे एक जो जिसे कहते हैं अपना आइडेंटिटी थेफ्ट जो है बहुत ज्यादा है. तो इसकी वजह से बहुत सारे लोगों को शायद ये कंसर्न हो. तो अगर वो कंसर्न को एलिविएट आप कर दें तो ज्यादा लोग जो है वो इसकी तरफ आएंगे और ज्यादा लोग इसको जो है क्या कहते हैं अडॉप्ट करेंगे इस सोल्यूशन को. लेकिन दिस इज अ ग्रेट सोल्यूशन एंड आई कंग्रेचुलेट एवरीबॉडी एंड आई थैंक यू प्राइम मिनिस्टर वन मोर टाइम. such a great effort. So thank you so much. हमारे साथ हैं बहरीन से नूरुर रहमान आबिद साहब. मुहतरम जनाब वजीर आज़म साहब, मोअज़्ज़िज़ सामीन, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह व बरकातहू. ये सितंबर के पहले हफ्ते में मुझे सोशल मीडिया से पता चला कि रोशन डिजिटल अकाउंट मुतारिफ हो रहा है. तो मैंने कहा इसको खोलने का तजर्बा किया जाए. अगरचे मेरी आईटी स्किल्स तो बहुत कम है लेकिन फिर भी कोशिश की मैंने और मुझे बड़ी खुशगवार हैरत हुई. तो 20 मिनट में सारा काम मुकम्मल हो गया, लेकिन सिर्फ डॉक्यूमेंटेशन अपलोड करने के लिए मुझे अपने किसी बच्चे को इन्वॉल्व करना पड़ा. लेकिन घर बैठे बिठाए स्टेट बैंक ने इतनी बड़ी सहूलत दी है ओवरसीज पाकिस्तानी के लिए कि ये आज से पहले कभी भी अवेलेबल नहीं थी. और सोने पे सुहागा ये जो नया पाकिस्तान इस्लामिक सर्टिफिकेट मुतारिफ हुए हैं, ये बहुत ही दरीना ख्वाहिश और जरूरत थी बैरून मुल्क पाकिस्तानियों के लिए. तो उसको मुतारिफ करा के तो बहुत बड़ा एहसान किया आपने पाकिस्तान के ऊपर भी और हमारे ऊपर भी. तो इसके लिए तो बहुत ही हम खुश हैं. और मैं बैंकिंग में हूँ, एक बहुत बड़े इस्लामिक बैंक का इंडिपेंडेंट डायरेक्टर हूँ. पूरी बैंकिंग और इन्वेस्टमेंट सेक्टर में कहीं पे भी इतनी यील्ड वाला इस्लामिक इन्वेस्टमेंट सर्टिफिकेट अवेलेबल नहीं है. तो इसलिए मैं स्टेट बैंक को और गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को मुबारकबाद पेश करता हूँ कि आपने इतनी अच्छी प्रोडक्ट जो है वो इंट्रोड्यूस करवाई है. 2 मशवरे मेरे हैं. एक तो स्टेट बैंक गवर्नर साहब डॉक्टर वाकिर साहब आपके लिए कि ये आपने इतनी अच्छी प्रोडक्ट ओवरसीज पाकिस्तानीज के लिए इंट्रोड्यूस करवाई है. इसी तरह की प्रोडक्ट पाकिस्तान के अंदर रहने के वालों के लिए भी इस्लामिक सर्टिफिकेट जरूर इंट्रोड्यूस करवाएं, खसूसन जो हमारे लोग रिटायर हो चुके हैं.
उनको महफूज इन्वेस्टमेंट का कोई चॉइस नहीं है गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज, तो इस पर प्लीज जरूर गौर कीजिएगा। और दूसरा गुजारिश प्राइम मिनिस्टर साहब आपके लिए है कि आपने अभी देखा 88,000 लोगों ने अकाउंट खोल लिए हैं, और ये सिर्फ स्टेट बैंक के वेबिनार और बैंकों के वेबिनार की बदौलत हुआ है। अगर आप 10-15 मिनट की कुर्बानी करके एक तकरीर ओवरसीज पाकिस्तानी के लिए खसूसन करें तो सोशल मीडिया के थ्रू आप मिलियंस को पहुंच पाएंगे, एंड आप देखेंगे कि ये जो 500 मिलियन है इंशाल्लाह 5 बिलियन में कन्वर्ट हो जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज। जी आगे बढ़ते हैं। मेहदी रजा साहब हैं यूके से। अस्सलाम वालेकुम। जी मैं मेहदी रजा यूके से बात कर रहा हूँ। मैं मैकेनिकल इंजीनियर हूँ, यहाँ अमेज़न में काम करता हूँ। मुझे रोशन डिजिटल अकाउंट के बारे में ऑनलाइन पता चला। जी इंफॉर्मेशन मौजूद थी। मैंने उनका कंपैरिजन करना शुरू किया, लिटरेचर देखा और मुझे अच्छा लगा। डिसाइड किया मैंने कि मैं अभी बैंक के साथ अकाउंट खोलता हूँ, क्योंकि लिटरेचर बहुत क्लियर था और भी स्कोप था फॉर रोशन डिजिटल अकाउंट। तो सारे चार्जेस वगैरह ऑलरेडी काफी क्लियर थे। अकाउंट खोलना बहुत सिंपल रहा। विदिन 48 आवर्स अकाउंट खोल दिया गया। मुझे एक अकाउंट मैनेजर दी गई जिन्होंने मुझे हर प्रोसेस पे अपडेट किया, फॉलो किया मेरी क्वेरीज को, और उसके बाद मैंने डिसाइड किया कि मैं नया पाकिस्तान सर्टिफिकेट का इन्वेस्टर। हम यूके वालों के लिए जो आप इंटरेस्ट रेट दे रहे हैं वो बहुत अच्छा, क्योंकि यहाँ हमारे बैंक 1-2% से ज्यादा नहीं देते, तो जो वहाँ पे इंटरेस्ट हमें मिल रहा है वो बहुत अच्छा है। इसलिए आई एम वेरी हैप्पी। 2 सजेशंस सर। पहली ये कि आप जो है पैसा तो आ रहा है और इंशाल्लाह और भी आएगा, लोगों को उसको खर्च करने के लिए पाकिस्तान में थोड़ा सा इंसेंटिव दें कि जैसे अगर मैं कोई गाड़ी खरीदता हूँ या पाकिस्तान में कोई प्रॉपर्टी खरीदता हूँ या इवन कोई छोटा फोन या कोई और चीज लेता हूँ, उसमें टैक्स में कोई रिबेट या कोई इंसेंटिव दिया जाए ताकि वो पैसा पाकिस्तान की इकोनॉमी की साइकिल में आए। और सेकेंडली सर, इतनी अच्छी प्रोडक्ट है, इसको प्रमोट करना चाहिए स्टेट बैंक को भी और जितने भी बैंक्स हैं। यहाँ पे टीवी पे एडवर्टाइजमेंट, प्रिंट मीडिया में या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में एडवर्टाइजमेंट आने चाहिए ताकि और लोगों को पता चले और ज्यादा से ज्यादा लोग इसमें इंशाल्लाह और एंगेज होंगे। बहुत शुक्रिया। जी हाँ, बिल्कुल। एक इंटरनेशनल मार्केटिंग का प्लान भी तैयार किया हुआ इन्होंने। इरफान मुस्तफा साहब हैं मुत्तहिदा अरब अमारात से। मंसूर खान है सऊदी अरब से। जी मंसूर भाई। पहले तो मैं आपका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। रजा बाकिर साहब, आपका भी बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। और मिस्टर प्राइम मिनिस्टर, हमेशा से बैरून मुल्क पाकिस्तानियों की अहमियत के लिए आप हमेशा से बात करते आए हैं और हमेशा से उनके ऑन द फोर फ्रंट रहे हैं, तो उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और आपके उस एतमाद पे पूरा उतरते हुए तमाम पाकिस्तानी, उन्होंने सिर्फ 5 माह की कलील मुद्दत में आरडीए अकाउंट्स में ऑलमोस्ट $500 मिलियन ट्रांसफर किए। इंशाल्लाह ये मजीद बढ़ेंगे। मैं पिछले 12 साल से सऊदीया में मुकीम हूँ और मुख्तलिफ बैंकों के साथ मैं बैंकिंग कर रहा था। रोशन डिजिटल अकाउंट के बारे में मुझे मेरे जो बैंक हैं, बैंक अल-फलाह ने खुद अप्रोच किया, उन्होंने खुद इनिशिएटिव किया और उन्होंने मुझे इसके फवायद के बारे में आगाह किया। पहले तो मैंने उसको इतना सीरियसली नहीं लिया, लेकिन जब उन्होंने परसू करते हुए थोड़ा सा एक्सप्लेन किया तो सिर्फ अकाउंट खोलने में 15 मिनट लगे, विदिन 48 आवर्स अकाउंट खुल गया। तो दैट वाज अ वेरी गुड ऑप्शन। इट वाज अ वेरी यूजर फ्रेंडली प्रोसीजर था, कोई परेशानी हमें उसमें नहीं। और ये घर बैठे बैंकिंग एक हमारी रिक्वायरमेंट थी तमाम एक्सपर्ट्स की, इंस्टेड ऑफ गोइंग टू द बैंक्स हम घर बैठे अपने फंड्स को मैनेज कर सकें। सिर्फ मेरी एक सजेशन है जो कि स्पेशली सऊदीया में मैंने एक प्रॉब्लम नोट की है, जो कि मेरे बाकी कुलीग्स हैं या जो कम्युनिटी में हम बात करते हैं, यहाँ से जो रेमिटिंग बैंक हैं या जो इंटरमीडियरी बैंक्स हैं, वो अक्सर पैसे ट्रांसफर करने में डिले करते हैं। वो 1 से 7 दिन तकरीबन लग जाते हैं, कभी कभार 1 दिन में ट्रांसफर हो जाते हैं, कभी कभार इट टेक्स अप टू 7-8 डेज। उस सिलसिले में मैं स्टेट बैंक से रिक्वेस्ट करना चाह रहा था कि अगर वो लोकल बैंक्स के साथ मिलके यहाँ पे जो रेमिटिंग बैंक्स है सऊदीया में, उनके साथ इस चीज को थोड़ा सा अगर सॉर्ट आउट कर सकें। थैंक यू वेरी मच। जी बहुत बहुत शुक्रिया। इरफान मुस्तफ़ा
लगता है उनका कनेक्शन अभी बहाल नहीं हुआ. आप कुछ कहना चाहेंगे? आगे चलते हैं. अब मोमेंटस जो हैं वो डिस्ट्रीब्यूट किए जाएंगे. वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान साहब, आपसे गुजारिश है कि आप तशरीफ़ लाइए. गवर्नर स्टेट बैंक, मिनिस्टर फाइनेंस, आपकी तशरीफ़ लाइए. सबसे पहले है जी यूनाइटेड बैंक लिमिटेड, हाईएस्ट नंबर ऑफ अकाउंट्स ओपन थ्रू रोशन डिजिटल अकाउंट UBL. और हाईएस्ट अमाउंट ऑफ डिपॉजिट्स थ्रू रोशन डिजिटल अकाउंट मिज़ान बैंक. और एक और भी इनकी कारकर्दगी रही मिज़ान बैंक की कि हाईएस्ट अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट इन इस्लामिक नया पाकिस्तान सर्टिफिकेट्स. तो आप एक और मोमेंटो रिसीव करेंगे प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब से. अगला मोमेंटो है हाईएस्ट अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट इन कन्वेंशनल नया पाकिस्तान सर्टिफिकेट, एंड दिस गोज टू हबीब बैंक. और एप्रिसिएशन है फॉर स्पेशल मार्केटिंग एफर्ट्स बाय बैंक अल फलाह. और अब मैं गुजारिश करूंगा वज़ीर आज़म इस्लामी जमहूरियत पाकिस्तान इमरान खान साहब से कि अपने ख्यालात का इजहार करें. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. अपने क्रिकेटर्स को भी वेलकम करता हूँ, और बैंकर्स को ख़ास तौर पे. और आज स्टेट बैंक गवर्नर आपको ख़ास मैं खराज तहसीन पेश करता हूँ, क्योंकि ये मैं बड़ी देर से कोशिश कर रहा था कि किसी तरह हम अपने ओवरसीज पाकिस्तानीज को टैप करें. मेरी ये अब से नहीं, मैं कोई 20 साल से कह रहा हूं कि हमारा जो सबसे बड़ा एसेट है वो ओवरसीज पाकिस्तानी है. और मेरा इंटरेक्शन क्रिकेट की वजह से शुरू से था ओवरसीज पाकिस्तानी से, लेकिन फिर शौकत खानम की जब मैंने फंड रेजिंग शुरू की तो सबसे ज़्यादा मुझे रिस्पॉन्स ओवरसीज पाकिस्तानीज का मिला. तो तब मुझे अंदाज़ा हुआ कि ये हमारा बहुत बड़ा पोटेंशियल बाहर बैठा है. जब से हम गवर्नमेंट में आए हैं, सबसे बड़ा प्रॉब्लम करंट अकाउंट डेफिसिट, कि हमारे पास जो डॉलर्स मुल्क के अंदर आ रहे हैं वो कम थे, और जो डॉलर्स पाकिस्तान से बाहर जा रहे थे वो बहुत ज़्यादा थे. तो बहुत बड़ा खसारा था. रिकॉर्ड डेफिसिट था करंट अकाउंट का, 20 अरब डॉलर, जो पाकिस्तान की तारीख में किसी भी गवर्नमेंट को इस तरह का डेफिसिट नहीं मिला. तो इसका जो भी बैंकर्स समझते हैं और जो हमारे इकोनॉमिस्ट और फाइनेंस मिनिस्टर, सबको पता है कि इसका सबसे बड़ा जो इम्पैक्ट होता है वो करेंसी के ऊपर होता है. और जब करेंसी डीवैल्यू होती है तो जो सबसे बड़ा इम्पैक्ट होता है वो उस मुल्क के गरीब अवाम के ऊपर होता है, क्योंकि हर चीज महंगी हो जाती है. तो रुपया जब गिरा तकरीबन 107 रुपए डॉलर पे, आज 160 रुपए डॉलर पे गया, तो जो भी चीजें पाकिस्तान से बाहर से इंपोर्ट होती थी, मेनली तेल, जब तेल महंगा हुआ तो सब चीज महंगी हो गई. ट्रांसपोर्ट, बिजली, सब इंपैक्ट होती है जब तेल की कीमत ऊपर जाती है. और उसके अलावा जो कि इंपोर्ट्स, जो खाने पीने की चीजें, एडिबल ऑयल जो हम इंपोर्ट करते हैं, वो एक तो महंगा हुआ डॉलर के मजबूत होने से और रुपए गिरने से, लेकिन फिर वैसे भी ये कोविड की वजह से उसकी कीमत ऊपर चली गई. तो घी महंगा, फिर दालें 70% इंपोर्ट होती है, वो महंगी. तो जो सारा इम्पैक्ट जब करेंसी डिवैल्यू हुई तो उसका अवाम के ऊपर पड़ा. और बड़े हमारे लोगों को
एक बड़ा मुश्किल टाइम से गुजरे हैं, और ख़ास तौर पे जो तनख्वाहदार तबका है, तो उससे हमने शुरू से एक चीज़ रियलाइज़ की कि जब तक हमारे रिजर्व्स बिल्डअप नहीं होते फॉरेन करेंसी के, तो हमारा जब तक रुपया मजबूत नहीं होता तो इन्वेस्टमेंट भी सही माने में नहीं आती। क्योंकि इन्वेस्टमेंट जो मुल्क की ग्रोथ रेट बढ़ाती है, इन्वेस्टमेंट तो तब आती है जब लोग, ख़ास तौर पे जिनके डॉलर्स में पैसे पड़े हों या जिन्होंने बाहर से पैसा पाकिस्तान में इन्वेस्ट करना हो, तो अगर वो डॉलर से कन्वर्ट करके रुपए में इन्वेस्ट करेंगे और उन्हें पता चलेगा कि अगर रुपए ने गिर ही जाना है तो वो डॉलर में ही रखते हैं, तो इसलिए इन्वेस्टमेंट भी रुक जाती है जब करेंसी फ्लक्चुएशन होती है। तो शॉर्ट टर्म में, क्योंकि लॉन्ग टर्म में तो इसका सिर्फ एक ही रास्ता है कि हम अपनी एक्सपोर्ट्स बढ़ाएं, और मुझे बड़ी खुशी है इसकी, और मैं ख़ास तौर पे कॉमर्स मिनिस्ट्री को दाद देना चाहता हूं कि हमारी रिकॉर्ड इंप्रूवमेंट हुई है एक्सपोर्ट्स के अंदर, और उस टाइम के ऊपर एक्सपोर्ट्स बढ़ी हैं जबकि सारी दुनिया में कोरोना की वजह से बुरे हालात हैं दुनिया की इकोनॉमीज़ के, और हमारी जो एक्सपोर्ट्स बढ़ी हैं ये बड़े सगीर में जो हमारे से आगे थे, बांग्लादेश और उनकी हिंदुस्तान जो हमारे कंपेटिटर्स थे, उनसे ज़्यादा तेज़ पाकिस्तान की एक्सपोर्ट्स बढ़ी हैं। और ख़ास तौर पे जो टेक्सटाइल सेक्टर है वो बूम कर रहा है आज। जिधर एक वक्त पे टेक्सटाइल मिल्स बंद करके और रियल एस्टेट में लोग जा रहे थे, आज नई टेक्सटाइल मिल्स लग रही हैं। आज फैसलाबाद, गुजरांवाला, सियालकोट में टेक्सटाइल फैक्ट्रियों के लिए स्किल्ड वर्कर्स नहीं मिल रहे। तो ये एक बहुत बड़ा चेंज आया है जिसके अंदर एक कॉन्शियसली गवर्नमेंट ने कोशिश की अपनी एक्सपोर्ट्स बढ़ाने की, रुपए को स्टेबल रखने की, और रुपए को स्टेबल रखने में ये जो रोशन डिजिटल अकाउंट्स का जो इनिशिएटिव लिया स्टेट बैंक ने, मैं ख़ास तौर पे आज इसलिए आपको रज़ा खराज तहसीन पेश करना चाहता हूँ कि मैं आते साथ ही पहले दिन से शुरू हुआ था कि किसी तरह पाकिस्तान, ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ को टैप करो, लेकिन वो हम नए आए थे, इतनी और चीज़ें थी, और सही माने में जब हमने वो मार्केट भी नहीं किया जब हमने शुरू किया ये लेकिन अभी इसमें बहुत बड़ा पोटेंशियल बाकी है। और रज़ा, आपको ये जो भी हमारे ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ ने अपनी बड़ी, सब ने छोटी छोटी बातें की, लेकिन हर ने कोई ना कोई तजवीज़ दी आपको, और ये आपका इंटरेक्शन बहुत ज़रूरी है इनके साथ, क्योंकि ये हैं जो आपके स्टेक होल्डर्स हैं, और इनकी जो भी छोटी छोटी रुकावटें हों, आपके पास सेल होना चाहिए स्टेट बैंक पे, जिसकी सिर्फ इस वक्त कॉन्सेंट्रेशन होनी चाहिए कि इनके हर मसला इनका हल हो। और ये जो छोटी छोटी आपको तजवीज़ें देते हैं, इससे जितना आप सहूलत पैदा करेंगे ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ के लिए, ख़ास तौर पे जो हमारे वर्कर्स हैं जिनके जो चाहते हैं आसानी से अपना पैसा या पाकिस्तानी बैंक्स में रिमिट कर सके इस फैसिलिटी के ज़रिए, इनके लिए जितनी आप आसानी पैदा करेंगे उतनी तेज़ी से ये हमारे ये जो अमाउंट्स बढ़ेंगे। तो 88,000 अभी आपके पास बैंक अकाउंट्स हुए हैं, 88,000, और गालिबान 90 मुल्कों में, 97 मुल्कों में। तो अगर इसी रेट पे अगर हम चलते गए तो मुझे जो सबसे बड़ी खुशी ये है कि हमारी स्टेबिलिटी अपनी, क्योंकि हमने कर्जे, एक तो बोझ इतना कर्जों का पड़ा हुआ है, हमारी हुकूमत ने अब तक, हफीज़ ये मुझे करेक्ट कर दें, कि हमने रिकॉर्ड पाकिस्तान के कर्जे वापस किए हैं। कभी भी पाकिस्तान की तारीख में किसी गवर्नमेंट ने इतने ज़्यादा कर्जे वापस नहीं किए। मैं फॉरेन लोन्स की बात कर रहा हूँ। अब तक हम 20 अरब डॉलर ढाई सालों में वापस कर चुके हैं। टोटल 6,000 अरब रुपए कर्जों की किस्तें दे बैठे हैं अभी तक। तो ये भी एक मिरेकल है कि आज अल्लाह का शुक्र है कि गवर्नमेंट इतने बड़े कर्जे के बोझ के बावजूद सारे जो हमारे इकोनॉमिक इंडिकेटर्स हैं वो पॉजिटिव हो गए। ये कोई भी नहीं एक्सपेक्ट कर। और उसके अलावा कोरोना का चैलेंज अलग, जो कोरोना से डेवस्टेशन हुई है दुनिया के अंदर। मैं देख रहा था कि हिंदुस्तान की जो इकोनॉमी है वो 10% गिरी है, 10% माइनस में गई है। इंग्लैंड के अंदर उनको 300 साल
میں سب سے زیادہ بڑی ریسیشن آج 300 سال کے بعد اتنی بڑی ریسیشن آئی ہے، اور ہم وہ اللہ کا خاص کرم ہے ہمارے ملک میں کہ اس کے باوجود کہ اتنے چیلنجز تھے، آج پاکستان کی اکانومی ایک پازیٹیو ڈائریکشن کے پر جا رہی ہے۔ اور یہ جو آج کی فنکشن ہے، میں پھر سے آپ کو سٹریس کرتا ہوں کہ یہ اس کے اوپر اب آپ کو نئی نئی چیزیں سوچنی ہے، کس طرح آپ نے اٹریکٹ کرنا ہے۔ ایک تو ہیوی ایڈورٹائزنگ کیمپین، جتنی بھی ایک پلان قسم کی فوکسڈ ایڈورٹائزنگ کیمپین کریں گے اوورسیز پاکستانیز میں، اتنی تیزی سے یا آپ کے اکاؤنٹس بڑھیں گے، کیونکہ ابھی بھی لوگوں کو پوری طرح اندازہ نہیں ہے اس کا۔ ابھی یہ میں دیکھ رہا تھا زیادہ تر تو لوگوں نے سوشل میڈیا سے پک کیا، لیکن الیکٹرانک میڈیا سے نہیں پک کیا، تو آپ کو ایک بڑی انوویٹو الیکٹرانک میڈیا کی کیمپین کرنی پڑے گی۔ اور میں آخر میں اپنے بینکس کو ایک تو اس کے لیے جو ان کی ابھی تک جو ابھی ایوارڈز بھی دیے ہیں بینکس کو، ایک تو ان کو اس کے اوپر خراج تحسین پیش کرتا ہوں، کیونکہ بڑی بات ہے کہ ہمارے بینکس نے جو ہماری اب ویژن ہے اس ملک کی گروتھ ریٹ کے اوپر، اور یہ جو فیوچر ڈائریکشن ہے جس طرف ہم جا رہے ہیں، اس میں بینکس کا بہت بڑا رول ہے۔ میں یہ بھی دیکھ رہا تھا کہ بینک کے ریکارڈ پروفٹس بھی دیکھ رہا تھا، تو یہ بڑی اچھی چیز ہے۔ تو اب میں یہ امید لگا رہا ہوں کہ یہ پروفٹس آپ استعمال کریں گے اس اکانومی کو گرو کرنے کے لیے۔ یہ اکانومی جتنی گرو کرے گی اتنی بینکس کا بھی فائدہ ہے۔ تو میں اس پہ اس میں ایک ایڈورٹائزنگ کیمپین آپ کو کرنی چاہیے، اور اب تو بڑا آسان ہے، پہلے تو یہ پاسبل نہیں تھا کہ اوورسیز پاکستانیز کے لیے کوئی ایڈورٹائزنگ کیمپین کر سکے، اب تو ساری چینلز کے اوورسیز آؤٹ ریچ ہو چکی ہے، اب تو بہت آسان ہے ان کو ریچ کرنا۔ تو ایک اچھی ایڈورٹائزنگ کیمپین آپ کو کرنی چاہیے، اور اس کا ایک بہت بڑا سارے ملک کو ہمیں فائدہ ہوگا، جتنے بھی یہ اب اکاؤنٹس بڑھتے رہے 88,000 سے جتنا بھی اوپر جائیں گے ملک کو فائدہ ہے۔ دوسرا 2 اور انیشیٹیوز ہیں جس کے اندر مجھے پاکستان کے بینکس کی بہت ضرورت ہے۔ نمبر 1 جو ہماری نیاب پاکستان ہاؤسنگ ہے، ہمارا یہاں ابھی تک کوئی کانسیپٹ نہیں ہے مارگیج فائنینسنگ کی، اور اس کی وجہ بھی تھی کیونکہ ہمارا ایک پرابلم تھا فور کلوجر لاز کا، کہ لوگ بینکس کے پاس کوئی طریقہ نہیں تھا کہ اگر کوئی ڈیفالٹ کرتا ہے تو وہ اپنے ریٹریو کیسے کریں گے پیسے۔ وہ انڈرسٹینڈیبل ہے کیونکہ بینکس نے اپنے شیئر ہولڈرز کو جواب دینا ہوتا ہے، لیکن اب جو سچویشن ہے اس میں میں پھر سے آپ سے اس کی تاکید کروں گا کہ آپ نے پوری طرح اس کے اندر